Chapter 5 Arithmetic Progression Exercise 5.3 Number 15 A contract on a construction job. Specify a penalty for delay of a competition beyond a certain date as follow. Rupees 200 for first day, rupees 250 for second day and 300 for third day. ये AP बन गई student 200, 250, 300 and the penalty for each succeeding day being rupees 50. हर succeeding day में उसको penalty कितनी लग रही है 50 rupees लग रही है more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as a penalty if he has to delay the work for by 30 days. तो देखिए पहले तो अपन AP बना लेते स्टूडेंट. So AP बनाने के लिए first is 200, then 250, 300. Okay, अब how many days इसको पेनाल्टी डिले करनी है. n इज इक्वल्स टू 30, तो ये n है 30 days. d हो गया 50, 250 माइनस 200 इज 50. चलिए अब अपने को 30 days का सम निकालना है पूरा, तो SN का फॉर्मूला लगाते हैं. ये हो गया अपने पास 200. सो SN इज इक्वल्स टू n बाई 2a plus n minus 1 into d. So SN for 30 days, so 30 upon 2 into 200 plus 30 minus 1 d. अच्छा d तो गिवन है ना 50, ये हो गया d. तो अब SN S30 इज इक्वल्स टू कट के 15 हो जाएगा. So 15, 400 plus 29 into 50. So S30 is equals to 15, 400 plus 5 is 45, 4, 10, 14. ये आया स्टूडेंट. अब इनको प्लस करिए. S30 is equals to 15, 400 plus 1450 is 1850. अब स्टूडेंट S13 के लिए S30 15 को मल्टीप्लाई करिए 1850 से, तो आपका आंसर आएगा 27750. ओके, 27750. Hence the contractor has to pay. Hence the contractor have to pay rupees 27750 if he delay the work. If he delay the work. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 16. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prize. 7 cash prize देना है means S is equals to 7 to the student of a school for a given overall academic performance if each prize is 20 less. हर प्राइज में 20 रुपीज कम है, तो D is equals to minus 20. Then its preceding price. Then find the value of each of the price. means A find करना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. अपने पास SN, अरे SN भी गिवन है. SN इज इक्वल्स टू 700. टोटल प्राइस दिया है 700, तो SN इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो S7 इज इक्वल्स टू 7 बाई 2a प्लस 7 माइनस 1 एंड d इज minus 20. so 700, ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में. 0.7 इज इक्वल्स टू 2a माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 20 इज 120. ये कटा 100 टाइम्स. 100 2 ज़ा 200, 200 प्लस 120. दिस प्लस माइनस इज माइनस इज इक्वल्स टू 2a. ये हो जाएगा 320 इज इक्वल्स टू 2a.
2 उठ के डिवाइड में जाएगा. So 320 divided by 2 is 160 is equals to A. तो the first price is 160. चलिए ऐसी सारी प्राइस पता करेंगे. First price is equals to 160. Second price 20 लेस करना है 140. Third price 120. Fourth price 100. Fifth price 80. Sixth price 60. And seventh last price is 40 rupees. ये फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट सारे 7 प्राइजेस. 20 लेस करते करते अपन ने पूरे कैश प्राइस फाइंड कर दिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. इन अ स्कूल thought of planting tree in and around the school to reduce the air pollution. The school decided that the number of tree that each section of each class will plant will be same as the class in which they are studying. For example, a section of class 1, जैसे class first है, will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees and so on till class 12. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the student? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री. ओके, तो देखिए एपी कैसे बनेगी. क्लास फर्स्ट अगर प्लांट कर रही है तो 3 सेक्शन है ए बी एंड सी. 1 प्लांट 1 प्लांट 1 प्लांट, तो 3. अगर क्लास सेकेंड प्लांट कर रही है तो 2 प्लांट 2 प्लांट 2 प्लांट, कुल मिला के 6 एंड सो ऑन. क्लास 12th 12 plants 12 plants 12 plants is equals to 36. ये फॉर्म हो गई एपी 3, 6, डैश डैश 36. ए हो गया अपने पास 3, डी हो गया अपने पास 3. ओके, एंड ए एन हो गया 36. अब स्टूडेंट एन भी गिवन है क्योंकि कुल मिला के 12 क्लासेस है, तो एन इज इक्वल्स टू 12. अब अपने को हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय सच स्टूडेंट, पूरे टोटल नंबर ऑफ फाइंड करना है. तो एस एन इज इक्वल्स टू, छोटा फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए प्लस ए एन. सो एस 12 इज इक्वल्स टू 12 बाय 2. ए इज 3 प्लस 36. सो एस 12 इज इक्वल्स टू, कट क्या आया 6, 36 प्लस 3 इज 39. So S12 is equals to 54 to 34. ये फाइंड आउट हो गया स्टूडेंट कि टोटल 12 क्लास इतने ट्री 234 ट्री प्लांट करेंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. A spherical made up of a successive semicircle with a center alternatively at A and B, starting with a center A of a radii. ये देखिए सेमीसर्कल बन रहे और हर सेमीसर्कल की अलग अलग रेडियाई गिवन है. 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 dash shown in the figure. What is the total length of such spherical made up of a 13 consecutive semicircle? So it is given n is equals to 13. 13 consecutive semicircle है, मतलब n कितना है 13 है. अब अपने पास रेडियस है तो सेमीसर्कल का फॉर्मूला होता है पाई डी. ओके, चलिए पाई आर, सॉरी नॉट पाई डी, हाफ सेमीसर्कल. सो पहले तो एपी बनाते हैं. पाई इंटू 0.5 प्लस पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस डैश डैश, क्योंकि 13 है 30 तो पाई इंटू 6.5. चलिए पाई इंटू
0.5 कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ से पाए 0.5 कॉमन निकलेगा तो 2, यहाँ 3 डैश डैश 13। यहाँ पे अपन सम का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन के लिए। सो पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए इंटू 0.5 इंटू n बाई 2 मतलब 13/2, ए मतलब 1, ए प्लस ए एन अपने पास गिवन है। ए एन अभी मैं आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसलिए लिख दे रही हूँ। सो 22/7 इंटू 0.5 इंटू 13/2 इंटू ए इज़ 1 and 13. So 22/7 into 0.5 into 13/2 into 40. 7 1s are 7, 7 2s are 14. देखिए 2 1s are 11 times. क्या बचा है 11 into 0.5 into 13 into 13 2s are, अच्छा इसको करेंगे तो आप 1.0 आ जाएंगे और 13 2s are 26। ये हो जाएगा 5 1s are 5 and 5 1s are 5, 5.5 into 26. Answer is 143 सेंटीमीटर। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए 5.5 इंटू 26, 30 कैरी ओवर 3, 30 33, 10 कैरी 1, 10 11, 0 3 4 1, पीछे से एक के बाद डेसिमल। ये आ गया आंसर 143 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग। स्टैक्ड मतलब जमे हुए हैं। पहले रो में 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, बॉटम मतलब ज़मीन से जो टच रो है वो, उसमें 20 लॉग्स है, फिर 19 है, फिर 18 है एंड सो ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। ओके, फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले तो अपने को एन फाइंड करना पड़ेगा। ओके चलिए एन फाइंड करेंगे। एन फाइंड आउट करना है और अपने को फाइंड आउट करना है एस एन। तो पहले तो अपन ए पी बना लेते हैं। 20 प्लस बॉटम में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, फिर कुल मिला के 200। टोटल लॉग्स तो 200 दिया है, मतलब एस एन अपने पास इज इक्वल्स टू 200 गिवन है। ए अपने पास 20 है और डी अपने पास -1 है। ओके चलिए पुट करते हैं अब एस एन के फॉर्मूले में। सो एस एन इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 200 इज इक्वल्स टू n बाई 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 एंड डी इज -1। सो ये 200 चला जाएगा तो इधर 400 हो गया एंड 40 प्लस माइनस n प्लस 1, सो 400 इज इक्वल्स टू n। 40 माइनस n प्लस माइनस माइनस फिर प्लस 1, सो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू n। 40 प्लस 1 41 माइनस n। ओके चलिए n का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर। दोनों टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब एलसीएम निकाल लीजिए, अपन फैक्टराइज मेथड से कर लेंगे। 400 सो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, देखिए 41 बन रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 400 भी आ रहा है, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम निकाल के देख लीजिए। 200 फिर 200 250 टाइम्स, फिर 225 टाइम्स और 5 5 5 1, 2 2 से 25 ले लीजिए और ये पूरे 2 ले लीजिए, 16 हो गया। चलिए फर्स्ट पेयर में से n कॉमन निकलेगा तो n माइनस 25 रिमेनिंग,
यहाँ से -16 कॉमन निकलेगा तो n माइनस 25. So n minus 25 and n minus 16 is equals to 0. So n की वैल्यू 25 आई और n की वैल्यू 16 आई है. n की दो वैल्यूज आई है तो दो बार फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट. द नंबर ऑफ रोज इज आइदर 25. सो नंबर ऑफ रोज इज आइदर 25 और 16. चलिए when n is equals to 16, when n is equals to 16, so an फाइंड करना है क्योंकि अपने को क्या फाइंड करना बोला है उसने कि how many logs are in the top row. an is equals to a plus n minus 1 into d. So 20 plus 16 minus 1 and d is minus 1. So an is equals to 20 minus 15 ones are 15. So an आ गया 5. सेकेंड टाइम जब n इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 25. a प्लस n माइनस 1 d 20 प्लस 25 माइनस 1 2 माइनस 1. सो 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4. देखिए -4 आया तो नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी इन नेगेटिव. देयरफॉर नंबर ऑफ लॉग्स कैन नॉट बी negative. Hence the number of rows is 16. ओके स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको कि 25 जब अगर पर पुट करेंगे तो अपना -4 आएगा और कभी भी -4 नंबर ऑफ लॉग्स कैसे फाइंड करेंगे. चलिए इसका सेकंड पॉइंट में बोला है कि विच वैल्यू फॉर विच वैल्यू इज डिपिक्टेड इन द पैटर्न ऑफ द लॉग. कौन सी वैल्यू इस पैटर्न ऑफ द लॉग में डिपिक्ट करेंगी. तो सेकंड पॉइंट के लिए अपना आंसर हो जाएगा द पैटर्न ऑफ लॉग. द पैटर्न ऑफ लॉग शो स्पेस सेविंग. स्पेस बचाने के काम आ रहा है. लॉग्स को एक के ऊपर एक जमा के रखेंगे तो आपकी स्पेस सेविंग क्रिएटिविटी शो होंगी इससे. दूसरा इससे रीजनिंग एंड बैलेंसिंग. हाँ, ये भी पता चलेगा कि कितना रीजनिंग है एंड बैलेंसिंग है. ओके स्टूडेंट, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. देखिए बकेट पहले पोटैटो से 5 सेंटीमीटर अवे है. दूसरे पोटैटो पहला पोटैटो और दूसरे पोटैटो में 3 मीटर का गैप है. फिर ऐसे ही सो ऑन. इसमें भी 3 मीटर का, फिर इसमें भी यहाँ कहीं होगा तो 3 मीटर का गैप है. फिर यहाँ 3 मीटर का. ऐसे पूरे 10 पोटैटो है, उनमें 3 मीटर का गैप है. अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो. यहाँ से आया, एक पोटैटो उठाया एंड देन फिर गया. तो आना 5 एंड जाना 5 इज 10. देन सेकेंड पोटैटो उठाने आया तो आना 5 + 3 8 एंड जाना 8 तो 16. सेकेंड 16 बनेगा. ओके स्टूडेंट, वैसे ही थर्ड के लिए 5 + 3 8 8 + 3 11 11 आना और 11 वापस जाना. तो ये कितना हो जाएगा 22. ऐसे ही अपने को पहले तो AP फाइंड करना है. फिर उसने आगे बोला है पिक अप एंड रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन द इन. आएगा, उठाएगा, जाएगा, वापस ड्रॉप करेंगे. कंटिन्यू इन द सेम वे until all the potato are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो कुल मिला के अपने को टोटल डिस्टेंस मतलब S10 फाइंड करना है. चलिए करते हैं. पहले तो AP फाइंड आउट कर लीजिए. तो AP बनाने के लिए
मैंने आपको बताई, जैसे यहाँ से कॉम्पिटिटर भागेगा, आएगा, पोटैटो उठाएगा, वापस जाएगा, तो फर्स्ट इज 10, 5 + 3 8, 8 16, then 22 and so on. So A is equals to 10, D is equals to 6, S10 we have to find out, N is equals to 10 क्योंकि number of potato is 10. चलिए S10 के लिए फॉर्मूला पुट करते हैं. 10/2 N की जगह प्लेस कर रही हूँ. 2 × 10 प्लस 10 - 1 into D. What is D? 6. So S10 is equals to 5. देखिए कट शॉर्ट होके 5 आ गया. 20 plus 9 into 6. So S10 is equals to 5. 20 plus 9 6 are 54. So S10 is equals to 5 into 74 is equals to 370. Hence, the total distance the competitor has to run is 370 मीटर. देखिए यहाँ से आना जाना, पूरे 10 पोटैटो को उठाना और वापस जाके बकेट में डालना, कुल मिला के 370 मीटर लगेगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.